صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، اس دین کے لیے انہوں نے محنتیں کی، اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا ختم ہو رہا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے نا وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ جنوری فروری سے نہیں شروع ہوتا، یہ انگریزوں کے جنوری فروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ اس وقت دو ہی تھے عمر، ایک عمر بن خطاب جو خطاب کے بیٹے تھے اور دوسرا عمر بن حشام جو حشام کے بیٹے تھے۔ عمر بن حشام اسے ابو جہل کہتے ہیں، ابو جہل کو عمر بن حشام کہتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جو اسلام کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ مشہور واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا، آپ نے سنا بھی ہوا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غصے میں گھر سے نکلے، تلوار لیے وہ جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے روکا، کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا عمر محمد کو بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس انہی قدموں پر واپسی گھر لوٹتے ہیں، دروازے کے قریب ہی پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے، فوراً ہی غصے میں آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کی بہن وہ اپنے خامند کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے خامند یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، بہنوئی چھپ گئے، بہن کو مارنے لگے، کہنے لگے دو مجھے وہ کتاب جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا نہیں، پاکوں کی کتاب ہے، پاکوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، تو کافر ہے، کفر پلید ہے، کافر پلید ہے، کافر نجس ہے، کافر نجاست ہے۔ اس قرآن پاک کو پکڑنے سے پہلے تجھے غسل کرنا پڑے گا، تجھے پاک ہونا پڑے گا۔ غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً تمانچہ بہن کے منہ پہ مارتے ہیں، تھپڑ بہن کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اب تھے بھی تو عمر ایسا جری قوی بہادر انسان کہ جس سے جو ہے جب مشرکین میں تھے تو لوگ ان کے ذریعے فخر کرتے تھے، کسی کمزور انسان پر تھوڑی فخر کرتے ہوں، طاقتور انسان تھے۔ جیسے ہی تھپڑ مارا نا، بہن نرم و نازک تھی، بہن کے ہونٹ پھٹ گیا اور ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہن کے پھٹے ہونٹ کو دیکھا تو فوراً دل نرم ہوا، بہن کے خون کو دیکھا نا تو فوراً دل نرم ہوا، ایسے سر کو نیچے جھکایا، کہنے لگے مجھے وہ کتاب پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی، انہوں نے کہا پیارے بھائی جان آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے غسل کر لیں، تب ہم آپ کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کلام پاک کی آیات سنائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو بہنوئی تھے، انہیں جب پتہ چلا تو وہ بھی باہر نکل آئے، کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو کہ تیرے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے حق میں جو دعا کی تھی، مجھے لگتا ہے آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا نا تو فوراً
एक्टिव हो गए, चौकन्ना हो गए, खबरदार हो गए कि उमर आ रहा है, खैरियत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा परेशान ना हो, उमर आज अपना बन के आ रहा है। जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में दाखिल हुए, सहाबा कराम ने खुदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारे तकबीर बुलंद की। जिब्रील अमीन फौरन तशरीफ लाए। पैगंबर उमर के इस्लाम लाने की खुशी में फरिश्ते जो है आसमानों पर जश्न मना रहे हैं, फरिश्ते आसमानों पर खुशी मना रहे हैं। इधर से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम ले आए ना, नमाज का वक़्त हुआ तो नमाज जो है वो छुप कर पढ़ी जाने लगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ये नमाज किसकी है? फरमाया अल्लाह की। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नमाज हम अपने घरों में अदा करें? अल्लाह की नमाज के लिए अल्लाह का घर ही होगा। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ उमर तुझे पता नहीं कि मुशरिकीन हमारे चारों तरफ जो है वो तलवारें लिए खड़े हैं? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया परेशान ना हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काबतुल्लाह बैतुल्लाह में लेकर चलता हूं। अब ये है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई या ना हुई, इस्लाम को इज्जत मिली या ना मिली। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को लेकर बाहर तशरीफ ले आए, तलवार निकाल कर खड़े हो गए, आगे आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने अपनी बीवी को बेवा करवाना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो, वो आए उमर के मुकाबले में और उमर से मुकाबला करे। मजाल है कि किसी में जुर्रत होती और कोई आगे बढ़कर जो है उमर का रास्ता रोकता। इतने जर्री कवि बहादुर इंसान थे। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब इनका दौर हुकूमत था ना, तो ये रातों को गलियों में गश्त करते थे, रातों को उठकर गलियों में गश्त करते थे, गलियों में चक्कर लगाते थे। इस वजह से चक्कर लगाते थे कि देखते थे कि कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं, कहीं कोई ऐसा घर तो नहीं है जो जिस पर खाना ना पहुंचा हो, जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हो, जो फक्र फाका की हालत में हो, और उमर जो है उसकी खबरगिरी करे। तो चलते चलते क्या देखते हैं कि एक घर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं और महसूस हो रहा है कि हंडिया भी पक रही है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने दरवाजा खटखटाया, उस घर में दाखिल हुए, उस माई से माजरा पूछा कि क्या बात है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये भूख की वजह से रो रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये खाना पक नहीं रहा, सालन पक नहीं रहा, क्यों नहीं आप इसको दे रही हो? तो उसने कहा, बच्चों की मां ने कहा कि इसमें मैंने पानी और पत्थर डालकर जो है रखे हुए हैं और उन्हीं को पका रही हूँ बच्चों को बहलाने के लिए, बाकी हमारे घर में कुछ नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह की बंदी, अमीरुल मोमिनीन को तूने नहीं बताया, खुद अमीरुल मोमिनीन। देखे ना, जब हुक्मरान ऐसे हों, हैं रातों को चक्कर लगाने वाले, रातों को लोगों की खबरगिरी करने वाले, तो फिर अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं नाज़िल होंगी? आज तो हमारे जो हुक्मरान है वो हमें ही खत्म करने पर तुले हुए। गुर्बत मत मिटाओ, गुर्बत मुकाओ का मतलब क्या है? गरीबों को ही खत्म कर दो। लेकिन एक वो वक्त भी था जब हुक्मरान खुद गलियों में चक्कर लगाया करते थे। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औरत से कहा, अल्लाह की बंदी तू उमर फारूक को कहती, तू उमर अमीरुल मोमिनीन को कहती, वो तुझे इंतजाम कर देते। तो औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन को खुद पता नहीं है, अमीरुल मोमिनीन बन गए और हमारे हालात की खबर नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उनकी आंखों से आंसू आ गए। फौरन वापसी पलटे और अपना जो बैतुल माल था, वहां से जो गल्ला था, अनाज था, उनके लिए जो जरूरत का सामान था वो लेकर जा रहे हैं। हम मिलते हैं, कहता है अमीरुल मोमिनीन हमें हुक्म किया होता, हम जो है हमें आपकी खिदमत कर देते, हम ये गल्ला अनाज उस औरत तक पहुंचा देते। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, और अल्लाह के बंदे क़यामत वाले दिन जवाब भी तो मैंने देना, क्या क़यामत वाले दिन तो मेरी जगह जवाब दे सकेगा? तो देखें कितना अजीम शान साहबी। फौरन घर गए उनके पास और उन्हें जो है गल्ला अनाज जो भी था उस माई को ला कर दिया और उसे कहा कि मेरे सामने ही पकाओ, मेरे सामने ही रोटियां पकाओ, मेरे सामने ही खाना पकाओ।
जब तक ये बच्चे सैर होकर खाना नहीं खा लेते ना, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही हुआ, उस औरत ने खाना पकाया, आटा गूंदा, रोटियां पकाई। जब बच्चों ने जो है खूब खुश होकर खाना खा लिया ना, उसके बाद जो है अमीरुल मोमिनीन वापसी घर की तरफ। तो मेरे भाई, ये अजीम शान सहाबी। इसी तरह इनके बारे में एक और वाक़या आता है कि एक रात लेटे हुए हैं चारपाई पे, आसमान की तरफ देख रहे हैं। आसमान की तरफ चांद पर नजर पड़ी, चांद में गौर कर रहे हैं, तक रहे हैं चांद को। चांद जो है कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी यहां से वहां जा रहा है। चांद की हालतें जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील हो रही हैं। जब चांद की हालतों को तब्दील होते देखा ना, तो फौरन अल्लाह तबारक तआला के दरबार में अर्ज की, बारी ताला, अब जो आपका गुलाम अमीरुल मोमिनीन है ना, इसकी हालत भी तब्दील हो गई है। अब इसके कंधों पर वो ताकत, इसके कंधों में वो ताकत नहीं रही कि ये खिलाफत का बोझ उठा सके। या अल्लाह, अब मेहरबानी फरमा, अब अपने महबूब के साथ मिला दे। हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता कि वो अक्सर दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपके रास्ते में शहादत की अपील करता हूँ, शहादत की दरखास्त करता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम शान हस्ती हैं। यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। ये मुसलमानों को पता होना चाहिए। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे से कितनी अजीम शान हस्तियां चली गईं, और हमें पता ही नहीं होता कि उन हस्तियों का किरदार क्या था। तो ये बयान करने से जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को अपनी जिंदगी में लाएं, सहाबा किराम की जिंदगियों का मुतालिया करें। बयानात सुनते हैं आप, उन बयानात में सहाबा किराम की जिंदगियों के बारे में बयान किया जाता है। अब इस बयान से आप हज़रात ने कुछ तो अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर इंसान बड़ा है तो उसे चाहिए कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। जैसे हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, तो हम और आप, मैं और आप अपने घर के सरबराह हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों की ज़रूरियात को, जिम्मेदारियों को पूरा करें। अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर इब्नुल खत्ताब। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ लोगों सुन लो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो सिफात रखी हैं कि जो एक नबी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम शान सहाबी हैं कि जिनकी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बोलता है। काफी दफा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से कुरान पाक को नाज़िल कर रहे हैं, और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है, पैगंबर उमर की बात को ही मान लीजिए कि अल्लाह की बात भी यही है, अल्लाह का फैसला भी यही है जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैसला है। तो बहरहाल मेरे भाई, अगले जुमे हम इंशाअल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बकिया हालात और इसी तरह उनकी शहादत को बयान करेंगे।